I think there's an entrepreneur in everyone. The Pakistani youth is just incredible. They're super intelligent. Departments में admissions हो रही हैं. मैंने कहा अच्छा आप किस डिपार्टमेंट में एडमिशन ले रहे हैं? कहते जहाँ भी मिल जाए. Okay. Entrepreneurs are built and not made. मैं ये करना चाहती हूँ लेकिन ऐसा that means आप करना ही नहीं चाहती. पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है. It's pretty important कि आपके साथ आपकी फैमिली how much are they supporting you. I tell my friends to to start करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा. Why put women in business? Yeah. Why just for business? ये जो women and men और ये जो हम बात करते हैं ना ऐसी कोई चीज़ नहीं है. When I opened it, हाँ, you are saw my story I and my name by Mariam Jamal was written there. अब औरत के पीछे हमेशा ये सपोर्ट का लफ्ज आता है. ये क्यों हमेशा औरत को सपोर्ट चाहिए होती है? अगर मैंने जीतना है तो एक शर्त पे कि सारे जीतें और हार किसी की ना हो. Hi everyone, Assalamu alaikum. This is Mariam Jamal and welcome to the very first session of Women Entrepreneurs of Asia. Today is a very special moment for me as we are joined with none other than the powerhouse of leadership and purpose. She's a woman who has mentored thousands across Pakistan and beyond. She's the founder of iconic School of Leadership, Miss Shiri Naqvi. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Thank you, Mariam. So nice to be here. Thank you very much for coming over here, for taking out time for us. Certainly. Here we are to talk about the women entrepreneurship. Mhm. And this platform is specifically built to promote and honor the women entrepreneurs. Right. And because you are one of those people who we always look forward to, you are a wonderful entrepreneur. We have been watching you since quite long, your mentorship and everything. You have already empowered countless people, Hopefully. I'm sure. I would really want to know your entrepreneurial journey of this School of Leadership. How did it go through? What was the idea behind it and everything? Please, I would love to listen. Job was never an option for me. There's too much to do in life. And I wouldn't ever see myself being bound between two slots of times in a day for someone else. And then even when I considered it through my young time, I was interning, or when I was 14, I was sent into not Engro, but उस वक्त Exxon होता था. Okay. I was learning we lived in Peshawar, and my mother sent me to Karachi to live with some friends. And here I was sent to school to learn shorthand typing. In Sath, I went to Exxon and was somebody's secretary for 6 weeks. Yeah, it was always exposure. The next summer हमें कपड़े सीने सिखा दिए, किसी क्लास में डाल दिया, 15 साल की उम्र पे स्पोर्ट्स में डाल दिया. I find the youth of today, when I sit with them, 80% of the time they're talking about food and what restaurants they have to go to. And then I say, and look at parents, and when their children want to do some hobbies or something, कहते हैं क्या गंद कर रहे हो, or we know that. So these people have never had hobbies. They've never lived through idealism of sports or crafts or art or debating or classical dancing, or I've done everything, modeling and other works. And that is why this mind just blasts open, and there is so much you can do. Now I found my purpose and direction when my own children were teenagers, my two boys, and I worked a lot with their friends. I worked as a part-time teacher in their school also. So I learned about that. They were fascinating. The Pakistani youth is just incredible. They're super intelligent. यहाँ पर अकल है, यहाँ पर जज्बा है. लेकिन जब मैं पूछती थी कहाँ जाना है, तो आता था एक ही जवाब, पता नहीं. And that made me so angry that we are wasting so much talent. That's so true. कराची यूनिवर्सिटी एक दफ़ा मैं गई तो वहाँ पर कोई 250 बच्चे स्टूडेंट्स बाहर फिर रहे थे, शामियाने लगे हुए थे. तो ऐसे ही मैंने जाके एक से पूछा यहाँ क्या हो रहा है? कहते हैं जी डिपार्टमेंट्स में एडमिशन्स हो रही हैं.
मैंने कहा अच्छा आप किस डिपार्टमेंट में एडमिशन ले रहे हैं? कहते जहाँ भी मिल जाए। Okay. फिर कुछ जॉब के लिए बच्चों को मैं पूछती हूँ या यूथ को, तो मैं कहा कहाँ जॉब करना चाहते हैं? जहाँ भी मिल जाए। तो डायरेक्शन नहीं थी, देयर वाज़ नो गाइडेंस फॉर देम। Mm. And that's when I decided to start the School of Leadership. It was a tough journey in the beginning, Yeah. but then that's the fun of it, right? I'm sure that is true. That is true. And there's a saying that entrepreneurs are built and not made, right? Well, what's your perspective about it? Like, Some how do part of it is true. I think there's been a decades long debate on nature and nurture, Okay. which 5 years ago came to peace. They settled on a formula which says humans are 50% nature and 50% nurture. Acha. Then I met a genetic scientist from Karachi University, Okay. and I asked her, is evil part of genetics? And she said, people have tendencies genetically of being pessimistic or optimistic, being kind or evil, genetically, which means nature, but which can be fixed through nurture because it's 50% has its force. Similarly, I think there's an entrepreneur in everyone. Okay. Yeah, it's जैसे हमारे अंदर कैंसर सेल्स हैं, पहले टीबी सेल्स हैं, but how do you feed them or not? That's how it erupts or It manifests. activates It basically. Yeah. Similarly for child, हमें बचपन में अम्मी कहती थी कि ऐसी वीकेंड पे ये नींबू लो, चीनी लो, लेमनेड बनाओ, बाहर खड़े हो जाओ रोड पे पेशावर में, लड़कियां, मैं और मेरी बहन, और नींबू पानी बेचो. Okay. And just because, not because we want to make money or Yeah. entrepreneurship, Yeah. no, because it's a discipline to be able to cherish labor. आजकल बच्चों से ज़रा को प्लेट उठा के किचन में रख दो तो उस पे एक नया झगड़ा शुरू हो जाता है. True, true. और या ग्लास उठा के मुंह तक लगाना काफ़ी है, बट ग्लास आएगा, कोई लेके आएगा. तो it's a very scary future that we're looking at with our, not the village child, not the rural child, but the urban. Urban. Urban, maybe middle class, lower middle class are still working very hard. But the elite, which has the money, which can have the direction, the amount of decadence, मतलब किसी वक्त भी घड़ी के देखो भूख लग जाए तो पीछे आ जाते हैं 10-10 हज़ार के. भाई आप नहीं खा सकते अगर आपको लंच नहीं पसंद, आपके टिंडे पके हुए हैं और आपको नहीं खाने, तो डिनर तक फिर आपको टिंडे मिलेंगे, बट बीच में कुछ नहीं मिलेगा. True, true, And that's how we grew up. true. We once a month or so we had a family outing. हम चाट वाट खाते थे कहीं से. लेकिन मेहनत मेहनत. पे मेहनत पे हमारी अज़मत थी. That's true, that's true. I think इसमें पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है. It's pretty important कि आपके साथ आपकी फैमिली, how much are they supporting you? Even when you have ideas, there are so many people who I do look to. My friends, I've seen my friends, they mostly share ideas with me, and then they're like, we want to work on it, but we don't know how to. We're scared. हमें नहीं पता, हम स्टार्ट कर देंगे, हाउ विल इट गो थ्रू, विल इट बी सक्सेसफुल और नॉट. लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि लड़कियों में, especially in the women, it is there. I don't know how, Yeah. but it's in their nature or something. So what do you suggest such girls, like, oh, if someone is actually willing to start, how should they do it? And don't know why is this thing coming? So you're putting two things very closely together. One, you mentioned parenting, and Yeah. one is these fears that Yes, women yes, have. yes. Men also have them. Degree का फर्क है. You're an entrepreneur. What happened in your youth and your parenting years? I mean, when you were a child. When I was a child, my dad has been extremely supportive for me. I wrote my first story. I'm a writer as well. So I wrote my very first story at the age of 11, and it was on an MS Word. Okay, I called my papa and I said that, see, I've written this story and all. और जब उस टाइम पे ना चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल्स हम बड़ा पढ़ते थे, हाँ. तो वो मुझे बड़ा फैसिनेट करती थी, और मैंने उसी की तरह की कोई स्टोरी बनाई. सो वो
the support that he showed me was that one day on a Sunday morning we went out to take breakfast. नाश्ता लाना था तो हम निकले और गाड़ी में रोका पापा ने न्यूज़पेपर वाले के पास and he said that pick a paper. हाँ I asked for it. अच्छा at the age of 10-11 हम young world बड़े शौक से सबसे पहले वो निकालते हैं मैगजीन खोल के we started reading. मैंने वो निकाला and when I opened it हाँ I saw my story I and my name by Mariam Jamal was written there. That moment has been so special and so precious for me till life. मैं हमेशा ये बात कहती हूँ बताती हूँ कि this support was always there. So वो चीज़ मेरे अंदर जो है ना वो उस दिन से बन गई थी. अच्छा ये भी एक हम लोग because I do a lot of women conferences and for companies or general public. Invariably जो भी स्पीकर की नोट स्पीकर्स आते हैं पैनलिस्ट होते हैं ऑडियंस से हम सवाल करते हैं ये जवाब आता है कि फला वाज माय सपोर्ट मेरा भाई या मेरी माँ या मेरा अब औरत के पीछे हमेशा ये सपोर्ट का लफ्ज आता है एक बल्कि ऑडियंस में ही लड़की ने कहा कि ये क्यों हमेशा औरत को सपोर्ट चाहिए होती है सो इन माय लाइफ देयर वाज पूरे घर का माहौल ऐसा था देयर वाज नो क्वेश्चन कि अब मैंने तुम्हें सपोर्ट करना है या अब करना है जो करना है करो टाइम पे गंद करना है सफाई भी कर लो हाँ. पैसे चाहिए उसको कमा भी लो तो when you leave that is truly an empowering environment where the child learns to make decisions. Empowerment is I can make decisions. Yeah. I can take risks. Risk. हर फैसले के साथ रिस्क होता है Risk support. एंड कोई ये सवाल नहीं अम्मी मेरे लिए कर दें मुझे सपोर्ट कर दें अब्बा मुझे आपको पता है मुझे कनेड में मैं पढ़ी थी कनेड कॉलेज में 15 साल की उम्र पे जब मैं वहाँ गई पेशावर से मैट्रिक करके मुझे उस वक्त तक पता नहीं था ये जुमला है तुम लड़की हो तुम ये नहीं कर सकती मैं जब ग्रेनेड में आई तो मुझे लड़कियों की बातें सुन के अजीब लगा कि नहीं नहीं हम तो लड़की हैं हम तो यहाँ नहीं जा सकते ये वाली जो बचपन से सिखाई जाती है ना खास तौर पे घर में भाई बहन हो मेरी तो एक बहन ही थी भाई कोई नहीं था तो कभी ये फर्क नहीं था मुझे दरख्त चढ़ने हाथ पूछने की क्या जरूरत दरख्त है इसीलिए तो है ऊपर जाके लोकाट खाने हैं लूचे खाने जाओ तुमने हॉकी खेलनी है स्विमिंग करनी है तुमने बस पे जाना है साइकिल पे जाना है बस इतने बजे आ जाना ये सवाल नहीं होता था बी केयरफुल खैर उस जमाने में सेफ्टी भी बड़ी थी सही. पेशावर यूनिवर्सिटी कैंपस पे हम रहते थे पूरा हाँ. हर एक को पता था किसका बच्चा किसके घर पे है कोई रात तक पता ही नहीं होता था अब आबादी इतनी हो गई आप सोचें उस वक्त 1970s की अगर मैं बात करूं तो दुनिया की आबादी 4 बिलियन थी आज 8 बिलियन है उस वक्त सोचा भी नहीं जाता था कि हाय हवा गंदी है मास्क पहनो क्या आज हमारा क्या जो लाहौर में हो जाता है ये इम्प्योरिटी लेवल स्मॉग स्मॉग लेवल किसी के घर पे वो पाइप लगी हुई है पानी हो रहा है उसको उठा के हम उससे पानी पी लेते थे दे तो दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वाज हम 13 की उस उम्र पे हमने गाड़ी चलाना सीखी स्लोली स्लोली करते करते फिर 16 पे 18 पे लाइसेंस लेके अम्मी के सारे काम हम सदर पेशावर जाके करते थे बिल्स देने हुए सब्जियां लेनी हुई सो लेकिन नहीं सिर्फ अब्बा करेंगे लड़का करेगा घर का औरत बाहर कैसे निकलेगी अभी मैं किसी के साथ मेरे क्लाइंट थे उन्होंने कहा कि हमने मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग करानी है जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को ट्रेन करेंगे कि औरतों को जेंडर को लेवरेज करें इन द सेंस के सवाल क्या आते हैं कि इसका अगर औरत का बैंक अकाउंट खुल जाए तो कैसे जाके खोलेगी साइन कैसे करेगी फिर वो एटीएम कैसे वो तो निकल नहीं सकती उसको कौन लेके जाएगा कोई सपोर्ट करने वाला होगा तो ये जो कल्चर है ना ये तो सच. इसमें आहिस्ता-आहिस्ता फ़र्क आ रहा है। मैं पेशावर में अपने बचपन की बात करूँ उस वक़्त एक औरत कई औरतें मेरी अम्मी के पास आती थी यही मेंटरिंग के लिए। Yeah. तो वो एक औरत आई तो वो काला बुर्का पहनते थे उस वक़्त तकरीबन सारे। तो एक दिन वो यंग लड़की 21 साल की आई उसकी ऑलरेडी शादी को 3 साल हो चुके थे। तो एक दिन वो आई और निकाब ना उठाए। तो अम्मी ने कहा क्या हुआ है मुझे लेट्स टॉक आई टू आई फाइनली उसकी मिन्नतें उसने यूँ निकाब उठाया तो शी वाज़ बैश्ड इन द फेस क्योंकि शी वाज़ मियाँ ने लॉज़ ने उसको और पता नहीं किस बात पे। तो ख़ैर इस तरह के वाक़यात बेतहाशा अभी भी हैं।
ऑनर किलिंग क्या होती है, मतलब माँ बाप अपने बच्चे को मार देते हैं अगर वो प्यार की शादी कर ले। सही बात है, नहीं सही बात है। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एनवायरनमेंट, एंड इसमें से हम आप जैसे लोग जो ये सब कर रहे हैं, इसमें से आपका बड़ा हाथ है कि ये लोगों तक खबर मिले। आज मैं 14 अगस्त के लिए एक शूटिंग करने तीन तलवार पे गई हुई थी। अच्छा, ओके। तो वहाँ पर वो बिजली नहीं थी, तो ट्रैफिक लाइटें बंद थी। तो 5-6 पुलिसमैन ट्रैफिक रेगुलेट कर रहे थे, तो बड़े लोग लाइन के पीछे अच्छा। खड़े हुए थे। अच्छा, तो एक साहब आगे निकल गए, तो मैं उनके पास गई। मैंने कहा, आपको पता है कि आप 5 फुट का फ़र्क है सिर्फ़, अच्छे शहरी और बुरे शहरी में 5 फुट का फ़र्क है। तो मैंने कहा, आपको पता है? कहते हैं, हाँ, पता है। तो मैंने कहा, करते क्यों नहीं है फिर? बस हमारी कौम को सब कुछ पता है, सही बात है, दैट माँ-बाप को सब कुछ पता है। सही बात है। नहीं, दैट्स ट्रू, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ना आई थिंक लड़कियों में खुद भी इस चीज़ का होना चाहिए, बजाय इंस्टेड ऑफ बीइंग स्केयर्ड ऑफ स्टार्टिंग समथिंग, अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट टेक द रिस्क, हाउ विल यू नो कि ये चीज़ सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। आई आई टेल माय फ्रेंड्स टू टू स्टार्ट करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा। एंड ऑफ कोर्स आप तो खुद इतनी you're mentoring so many young change makers and all, तो उसमें what do you find in women these days, like वो entrepreneurship वाला पार्ट आपको नजर आता है लड़कियों में? There's a transition, Okay, definitely. When I started 30 years ago, um, there was the fear factor was more, yeah, and now the transition is more towards the Gen Z, because I did some research. I hired interns and did a research on millennials and Gen okay, Zs, and इनके लिए जो what is of value, values होती है हमारी इकदार। तो इनके लिए values क्या है कि सारा मिल जाए और अभी मिल जाए। yeah, ये मिलेनियल्स में भी था। आई वांट इट ऑल एंड आई वांट इट नाउ। okay, आई वांट इट ईज़ी, easy, yeah, एंड आई वांट कम्फर्ट्स फ्रॉम व्हाट आई अर्न। right, या अच्छा, वो कम्फर्ट इसी में रहते हुए दे आर वेरी सेवी टेक्नोलॉजिकली। तो वो अपने इन ज़रूरियात को पूरी कैसे कर लेते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप भी थ्रू आईटी और इसके ज़रिए, कंप्यूटर्स के ज़रिए, फ़ोन पे के ज़रिए। देन ऊपर से एआई आया। एआई ने क्या किया है, द बिगेस्ट न्यू millionaires, yeah, teenagers yeah, are those who are setting up new startups with zero people. एआई को वो कहते हैं, मेरे लिए फाइना ये जो सारा आपने यहाँ खोला हुआ है ना, निकालें सब लोगों को, किसी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, okay, आप एआई को बोलें, मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट खोलो, oh, मेरा एचआर खोलो, मेरी सप्लाई चेन खोलो, एंड विदाउट पीपल yeah, एआई इज रनिंग द कंपनी, एंड यू आर कॉलिंग द शॉट्स। और यस सर, यस मैम, देयर इज नो कंप्लेंट्स, I'm sure, risk is coming down, and you're doing it, so you have your comfort, you have it all, you have it now, and you are the master of your life. Quite smooth, huh? yeah, that's his तो हर ज़माने का बदलना ज़रूरी है। उसके साथ खुद एक भी बहुत प्यारा लफ्ज़ है उर्दू का, जी, तरीका। तरीका, हाँ, सूफ़ियों का अपना तरीका है। no, हर एक रिलिजन, एथनिसिटी का तरीका है। ये जेन ज़ी का भी अपना तरीका है। no, that's actually pretty nice to know about this कि आपने इस चीज़ पे भी रिसर्च करे। That's nice। अच्छा, what do you think that um, women, they basically also have this a lot of family pressure from the family, मतलब like अपने बैक एंड पे के जैसे कि उन्हें घर को भी देखना है, वो भी एक प्रेशर होता है, और दे आर आल्सो ट्राइंग टू मैनेज द बिजनेस। व्हाट डू यू थिंक, हाउ हाउ शुड दे गो थ्रू अ इट? अ, देखिए 2 चीज़ें हैं। अभी मैं जो करती हूँ ना, फ्रॉम द लास्ट 4-5 years, या the women who are in my workshops, and most of them are mothers, मदर, and I ask them, "Who's looking after your children?" या And they would invariably say, "My parents, yeah, my in-laws." So that generation of parents and mother-in-laws, they are healthier, they are younger, they have the energy to take care of these. इसकी Somehow हमारी जो जनरेशन के पेरेंट्स एंड इन-लॉज थे, they were not so attuned today. अच्छा, वो करते भी थे ना, तो वो जॉइंट फैमिली होती थी। उसमें ममानी भी है, तो फूफियाँ चची भी भी हैं, है, चचियाँ, वो मैस में वो बच्चा पल जाता था। द होल ट्राइब यूज्ड टू कम टुगेदर। अब वो ट्राइब्स छोटे हो गए, तो एक पॉइंट तो ये होता है कि उनका सपोर्ट सिस्टम होता है। नंबर 2, जो आदमी है,
वो भी अब बुरा नहीं समझता उसका हाथ बटाने के लिए। वो भी बर्तन धो लेगा, वो कॉर्पोरेट भी सौदा। अच्छा, पहले हम हर चीज़ के लिए बाज़ार जाते थे, अब आप राइडर मँगवा लेते हैं, आप या होम डिलीवरी करा लेते हैं, सही वो उससे बहुत आसानियाँ। आसानी है। पहले हमें हर सब्ज़ी काटनी पड़ती थी, अब आपको पैकेट में फ्रोज़न मिल जाती है। Okay. Now, earlier you'd have to have a full-time maid to keep your house clean. Now you can have part-time services available. ये सारी साथ-साथ बढ़ती हैं, एक ऊपर जाती है, ज़रूरत साथ आ जाती है। फैक्ट्रीज़ में लड़की औरतें काम करती हैं, उस तबके इकोनॉमिक तबके की, उन पे बड़ा प्रेशर होता है। उनको जाके हांडी पकानी पड़ती है, उनको झाड़ू लगाना होता है, उनके बच्चे की यूनिफ़ॉर्म इस्त्री करनी। और अक्सर उनके बच्चे खुद झाड़ू लगा रहे होते हैं, छोटे-छोटे बच्चे खुद करते हैं, सँभाल लेते हैं, रोटी डाल लेते हैं, नहीं कुछ तो आग छोटे हैं तो गूँध लेते हैं आटा। तो उनको उन्होंने क्या होता है डेलीगेट किया होता है। तो उनकी फैमिली स्ट्रक्चर काम के गिर्द ज़्यादा सॉलिड होती है, राइट? लेकिन ये वाली औरतें अक्सर सीनियर मैनेजमेंट में फिर नहीं आती। नहीं आते। क्योंकि दे कांट टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको जहाँ पड़ी है ना बस मिल रही है, शुक्र है, घर भी चल रहा है, ये भी हो रहा है। और कंपनियां क्या चाहती हैं? कंपनियों के दो एंगल है। वो कहती हैं कि हम इनको फैसिलिटेट करते हैं, ख़ास तौर पे डिवर्सिटी एक्विटी इंक्लूजन की आजकल बड़ी धूम है क्योंकि एससीसीपी ने इसको लागू कर दिया। तो अब क्या हुआ है, इनको प्रमोट करने के लिए, इक्विटी में फैसिलिटेट करने के लिए औरतों को ट्रांसपोर्ट दी जाती है ताकि वो सेफ आएँ-जाएँ। यहाँ तक कि सेल्स टीम्स जो फार्मर के पास देहातों में जाती हैं, उनके लिए ड्राइवर गाड़ी भी दी जाती है। अच्छा, फिर उनको लेट सिटिंग अलाउड नहीं होती। मर्द शोर करते हैं लेकिन जब उनको समझाया जाता है कि हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि इवन प्लेइंग फील्ड बने। तो एक तो ये होगा। दूसरा एम्प्लॉयर कहता है मुझे बहुत सी औरतें चाहिए एट द बोर्ड लेवल, टॉप मैनेजमेंट, सी सुईट वो चाहता है। एक सीईओ को मैं मिली, वो कहता है मेरी जगह ले ले एक औरत, मैं बैठा हूँ कि कोई आके ले ले। अच्छा। बट औरतें इसी ज़िम्मेदारियों से वो छोटा-छोटा फ़िल्टर होके बहुत ही कम ऊपर आ रही हैं, लेकिन आ रही हैं, आ रही हैं, आ आ रही रही हैं। दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ द गुड पार्ट कि वो एटलीस्ट आ रही हैं, वरना ये चीज़ भी बड़ी वो रही है कि उनको इतनी स्पेस नहीं मिलती थी पहले। अब शायद थोड़ा-थोड़ा करके हमारे कल्चर में ये चीज़ डेवलप हो रही है दैट वी आर गिविंग स्पेस टू पे मैन। अच्छा, फिर मैं जब गाँव-वाँव में जाके कॉन्फ्रेंसेस करती हूँ, हुँ। वर्कशॉप्स करती हूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल खैरपुर से आगे एक जगह है पीर जोगोट, अच्छा। तो सिर्फ़ खजूरों के बाग हैं फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो वहाँ हमने 200 लड़कियाँ, बच्चियाँ जमा की 13 से 15 साल की। उसमें ज़्यादातर जो थी, उन्होंने कहा हम पहली हैं या तो घर से बाहर एवर निकली हों, अच्छा। या है कि हम पहली हैं जो कभी ख़ानदान में स्कूल गई हो, जो पहली हैं जो कभी इस तरह की पब्लिक कॉन्फ्रेंस में आई हों। सो उनके तो चेहरे से नूर निकल रहा था, आँखों से रोशनी निकल रही थी क्योंकि उनके लिए यही मौका फर्स्ट टाइम भी तो था। इतना बड़ा था। एंड दे वर द रोल मॉडल्स फॉर सो मेनी गर्ल्स दैट वर सिटिंग एट होम, लॉन्गिंग फॉर दिस स्लाइट लिबरेशन ऑफ बीइंग ह्यूमन। ये जो हम फ़र्क करते हैं ना, एंटरप्रेन्योर औरतों के लिए आपके सवाल ज़रा इस तरफ चले गए हैं। वी वांट टू स्टिक टू द spirit of entrepreneurship. दैट्स ट्रू। Number one, women don't wait to be supported. Let your purpose be so big. अब आपने कहा ना, वो कहती है हाय यहाँ मैं फेल ना हो जाऊं। या अगर आपके गोल में एक लेकिन आ जाए, बट आ जाए, मैं ये करना चाहती हूँ लेकिन ऐसा, दैट मीन्स आप करना ही नहीं चाहती। अगर बट आ जाए तो पहला फॉर्मूला तो है कि वो छोड़ दें वो ख्याल, अगर बट आ जाए सही, दूसरा ट्राई करें। हाँ, अच्छा, अगर ज़माना आपको कहता है कैसे करोगी, गिरोगी, फिसलोगी, लोग क्या कहेंगे, आप सिर्फ कहना है हाँ सही कह रही है, आप भी सही कह रहे हैं, सुनो सबकी। करो अपनी। क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं, वो आपको महफूज रखने हैं, वो आपकी बदनीयती नहीं नेक नियति से कह रहे हैं, सुन लो और फिर अपनी ट्रेन लगा दो। हाँ, मुझे रूमी की बात बड़ी पसंद है, कहता है तुम दरवाजे तक पहुंच के खोलो तो सही, आगे रास्ता तैयार है, लेकिन खोलो तो सही ना, इससे पहले वो रास्ता तुम्हारे पास नहीं आएगा। सही बात है। द पाथ इज ऑलवेज देयर, सही बात है। बट यू नॉट ओपन। बिस्तर पे सोफे पे बैठ के कह रहे हो हाय वो बाहर क्या होगा। हुँ।
सही बात है। हाँ, इमाम गज़ाली ने कहा था यकीन की अगली सीढ़ी पे चढ़ना है तो डर की पहली सीढ़ी को पार करो। वंडरफुल, वंडरफुल। आई लव टू नो ऑल दिस। आई थिंक इसमें एजुकेशन भी थोड़ा अपना पार्ट प्ले करती है, हुँ, या यू थिंक हाँ, देखें है? एजुकेशन में जैसे अगर आपने अकाउंटेंट बनना है तो आप हाँ। अकाउंटेंसी पढ़ें, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर में भी कितने रूट हैं, इंजीनियर में कितने, तो वो आपको टेक्निकल चीज़ बताता है हाउ टू मिटिगेट रिस्क। रिस्क। लेकिन जज़्बा आपको वहाँ तक लेके दरवाज़े तक जज़्बा लेके जाएगा। सही बात है। एजुकेशन आगे से आपके जो खड्डे, रोड़े, वो सब साफ़ करता है। ऑफ कोर्स इट प्लेज़ अ रोल। फॉर द You एंटरप्रेन्योरशिप have में। you have the jargon for it, you have the know-how, you have the critical analytical powers through education. तो वो भी अब जैसे लियारी में एक आपा परवीन है बड़ी मशहूर, उनके 11 साल पहले उनके हस्बैंड मर गए। ही डाइड बट बिफोर ही वाज़ वो खुला तेल बेचते थे साइकिल पे। तो साइकिल पे गली-गली जाके भई आपने मोटरसाइकिल का तेल चेंज कराना है। ही पास्ड अवे, शी स्टार्टेड हिज़ बिज़नेस, शी टूक ओवर और आज 11 साल बाद उनके पास 3 सुज़ुकियाँ हैं। रियली? जो अब वो सिर्फ लियारी में नहीं और जगह भी घूमती हैं और वो तेल चेंज करने का कारोबार करती हैं। हमें एंड आप उनको देखें कुछ हिंदू औरत है, साड़ी में वो ऐसे करके बैठी होती है, वो फिनेस वो कुछ भी नहीं। गेट इट, आई गेट। शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर। इस तरह की कितनी ख़वातीन हैं हमारी जो अंडर द रेडार काम कर रही हैं। नहीं है। जज़्बा है, कुछ ये भी है कि घर की ज़रूरत, फैमिली की ज़रूरत, लेकिन कम से कम भीख तो नहीं माँग रही। किसी के घर पे कपड़े तो सिर्फ़ नहीं धो रही, ट्रू। उसके अलावा भी मैं भी एक औरत को जानती हूँ क्योंकि मैंने एक दफ़ा कराची म्यूज़ियम में सूवेनियर शॉप खोली थी। तो वहाँ एक साथ ही बन कबाब की दुकान थी, तो वहाँ एक औरत थी क्या नाम था? रेहाना, वो और उसके 7 बच्चे थे। शी वाज़ अ विडो। और वो उसके बच्चों के साथ वो बन कबाब की दुकान चलाती थी। उसका अपना छोटा-सा ताज कॉम्प्लेक्स में फ्लैट था, अपार्टमेंट 2 कमरों का और क्या उसकी डिग्निटी थी। अच्छा ममता इतनी स्ट्रॉन्ग 7 बच्चे पाले यार थे, ऑफ इतनी कोर्स। स्ट्रॉन्ग कि हर गुज़रने वाले को ना प्यार करती थी। वो बन सो कबाब खुद नवाले बना के अपने ग्राहकों को खिलाती थी। अच्छा। And nobody found it bad because there was so much humility, so much love ना coming और हमारी आवाम तरसी हुई कोई को प्यार दे दे, कोई एक्नॉलेज कर दे। सही बात है। नहीं, दैट दैट इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू So और women like that are truly brave. ट्रूली ब्रेव जो दैट। कंफर्ट में होते हैं ना, they have more to lose. दैट इज़ ट्रू। पता है कि ये बात है वाक़ई में इम्पोर्टेंट है, और एजुकेशन वाक़ई में कहीं न कहीं शायद पार्ट प्ले कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक इट्स मोर अबाउट द स्किल एंड द आइडिया दैट जस्ट लीड्स यू Yeah. थ्रू। So that's why also the corporate sector for human performance, development and all, we always see what you said just now, skill, स्किल, लेकिन साथ will. विल। आपके पास कितनी भी स्किल हो, but if the will is not, I know how to play tennis, but I don't want to go to the court and knock balls. ट्रू। आप नमाज पढ़ने के लिए आपको स्किल है लेकिन विल नहीं है, नो मैटर किसी चीज़ में। लेकिन पहले जायका कहाँ से आता है? आप खानसामे को वही इंग्रीडिएंट्स दें और माँ को वही इंग्रीडिएंट कहो जी कढ़ाई बनाएँ, जायका किसका बेहतर होगा? हाँ, बिकॉज़ माँ की जो मोहब्बत है, ट्रू। उसमें जो विल का लेवल है, सही बात। वो क्वालिटी देती है और आजकल हर चीज़ हर कोई कर सकता है, सही। लेकिन किस तरह करता है, उसकी जीत होती है। ट्रू, दैट्स ट्रू। अच्छा, वुमेन दिस वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप थिंग, इसमें जो है वो हमारा एक तो ये चीज़ हम लर्न कर रहे होते हैं कि यार इट्स आई थिंक इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई थिंक इट्स मच मोर देन दैट, राइट? वो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एज़ फॉर मेन एज़ वेल बिकॉज़ मेन का तो बहुत अरसे से चल रहा है, ठीक है? ये टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं, ये तो कितना होगा 50 साल पुराना होगा। या बाहर के मुल्कों में डेवलप्ड कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में या औरतें सामने आई थी। आई बिल्कुल। आपको पता है कि उस वक़्त भी क्या इन द एंड 60s लेट 60s तक औरत को अब भी इजाज़त नहीं होती थी निकलने की, इट वाज़ तौहीन समझी जाती थी। वोटिंग राइट्स बहुत लेट औरत को वहाँ मिले। सो बट अगेन मच बिफोर हियर एंड could have several routes coming या into
play the game. Yeah. The context is, I think, freedom. 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 Because it's the soul, the human spirit wants to be free. ठीक? मैं आपके इतने प्यारे बाल जबरदस्ती पकड़ के काट दूं, हाँ? तो आप मुझसे बहुत लड़ेंगी और वही स्टाइल मैं आपको दिखाऊं और कहूं देखो ये वाला और तो चलो कर लो, हाँ? तो योर चॉइस वाज इन इट। जब हम किसी इंसान को चॉइस देते हैं, दे आर एक्नॉलेज्ड, दे आर रिकग्नाइज्ड एज हैविंग वैल्यू, उनकी वर्थ बन जाती है और जिससे सेल्फ एस्टीम बढ़ती है वगैरह वगैरह। जब एंटरप्रेन्योर होता है और हम अक्सर उसको पैसे से जोड़ते हैं कि जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना तो आई विल बी एबल टू मेक डिसीजंस ऑफ माय ओन, मैं अपनी चॉइस, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। Somehow it is. और उसके साथ साथ जो और उसको मिल जाते हैं ना, तो मीन्स एंड्स को अगर हम ऑपोजिट कर लें, अगर हम पैसे को एज द लिबरेटिंग फैक्टर की बजाय इधर से आगे चलें कि वो आइडिया क्या है, वो आइडिया पे मैं काम करूं तो पैसे खुद ही आ जाएं, क्योंकि पैसे अल्लाह देता है या लेता है, इज्जत अल्लाह देता है या लेता है। मैं क्यों वो काम करूं जो अल्लाह कर रहा है, मैं अपना काम करूं, मैं खड़ी हूं, मैंने शॉट मारनी है भाई। तो आप किस किस्म की शॉट खेल रहे हैं, किस मैदान में खेल रहे हैं, बाकी आपको फेम, लिबरेशन, पैसा मिल जाएगा। आई थिंक अमूमन लोग जो है ना वो इस चीज को मिसअंडरस्टूड करते हैं और दे जस्ट वांट टू गो अहेड देन दैट अदर पर्सन और वो ये भूल जाते हैं कि हमें पहले ये तो रीच करना है, हम वो उसको क्रॉस करें किसी तरह, उस चक्कर में आई थिंक दे फेल, मोस्टली दिस हैपेंस, राइट? काम को देखें, या उसमें मजे लें, एग्जैक्टली डेडिकेट हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, व्हाट्स दैट वन मिथ about women in business that you would like to bust right here, right Yeah, it's business. Why put women in business? Yeah. Why just for business? Yes. ये जो women and men और ये जो हम बात करते हैं ना, ऐसी कोई चीज नहीं है। Yeah. मैंने अपने Now it's सारे same. एंटरप्राइजेज में देखा है कि भाई बल्कि यहाँ तो बड़ी आओ पका तो लाइनों में अलग खड़े हो जाओ, हालांकि आई रिफ्यूज, जब मर्दों की लाइन में कहती हूँ नहीं, मैं आगे चली गई तो इसके साथ ना इंसाफी होगी, राइट? सही सो बात है। प्लीज फॉरगेट इट। हाँ। कोई कैद नहीं है, सारी बंदिशें और शैकल्स और हथकड़ियां जो है वो आपके जहन में हैं, आपका खानदान आपके साथ है, ब- उन मर्दों को भी उतनी बहुत मुश्किलात हैं। सही हाँ, बात है। उस पे क्यों नहीं कोई शो करते, उस पे क्यों नहीं कोई फोरम? इसलिए क्योंकि अगेन बहुत अरसे से चल रहा है, हमारा एक प्लेइंग फील्ड इवन नहीं है, नहीं है, बिल्कुल राइट? बिकॉज वुमेन इज स्टिल नॉट सेफ ऑन द रोड। नहीं भी। सो Yes. इंशाल्लाह जब सबके जहन खुलेंगे, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो सही क्यों, बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं तो कहती हूँ a country is as civilized as its woman is liberated. Oh, that's very true. I believe. Okay, so to end this conversation, I want you to tell me some like one book, one belief of an entrepreneur, and one habit. What would you say? When I came into this profession Yeah. 30 years ago, that's the first book I picked up, Stephen Covey's Seven Habits of Highly Effective People, then The Eighth Habit, and so on, many other fantastic writers. I listen to Ashfaq Ahmad Saab a lot. His wisdom is general for life, and life is business, business is life, both ways. So you can derive wisdom out of any book and apply it in any facet of life. तो किताबें तो इस तरह की बहुत सारी हैं, जो वन हैबिट इज ऑलवेज दैट स्टिक्स फर्स्ट, बहुत उसकी 7 हैबिट्स ही बहुत अच्छी हैं, Yeah. बट व्हाट आई प्रैक्टिस इज बिगिन विद द एंड इन माइंड। जो तुम आखिर में चाहते हो ना, उसको इतना पावरफुल बना लो। इफ यू वांट लूज वेट, आप अपनी तस्वीर बना लें कि मैं इसमें साड़ी में खड़ी हूँ, पतली, जब वो तस्वीर सामने होगी ना तो आपका हाथ खुद ही अगली हेल्पिंग लेने से पीछे हट जाएगा। सो बिगिन विद द एंड इन माइंड, एंड द अदर हैबिट इज विन विन। अगर मैंने जीतना है तो एक शर्त पे कि सारे जीतें Oh, और हार किसी की ना हो, फिर आप जीते क्योंकि आप इंसाफ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हैबिट ये हो गई दैट देयर इज नो वर्ड लाइक फेलियर, ऑलराइट? Right. देयर इज जस्ट another step that you need to take, and what the outcome is never in your hand. जैसे मैंने कहा, मैं शॉट लगाती हूँ, नियत क्या है, छिक्का लगाऊं, देखिए मैं आउट हो जाती हूँ। सो द आउटकम इज नॉट इन माय हैंड।
तो सक्सेस फेलियर को ना देखें, जर्नी को देखें एंड हैव अ पार्टी ऑन द जर्नी। Wonderful. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am, for the wonderful conversation. It was great. It was lovely to know and hear about all the stories, your jazba, the thing that is actually very important for us to know. And we should always remember that if you have an idea in your mind, start start working on it. Start soon, because someone else is already working on it. So we should always keep this in mind, keep learning about it. And this is Women Entrepreneurs of Asia. And stay healthy, stay kind, keep leading with heart. Until next time, thank you so much.